اور جیسے ہی میں نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا اس کے پاؤں الٹے ہو چکے تھے، اور جیسے ہی اس کے پاؤں الٹے ہوئے اسی وقت فضا میں ایک شور برپا ہو گیا۔ کہاں سے اتنی زیادہ چمگادڑیں آئیں کہ ایک دم سے آسمان کے اوپر پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ جس جگہ پہ ہم کھڑے تھے اس سے تھوڑے ہی فاصلے پہ جتنے بھی وہ کمرے بنے ہوئے تھے ان کمروں کے اوپر چمگادڑیں اس انداز میں پھڑپھڑانا شروع ہو گئیں کہ باقاعدہ طور پہ ان کے پروں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کچھ بہت زیادہ جیسے کوے کائیں کائیں کرتے ہیں شور مچ جاتا ہے، ایسے وہ بول نہیں رہی تھیں، لیکن ان کے پروں کی اتنی زیادہ آواز تھی، ایک عجیب سا شور تھا ان کا، عجیب سے انداز میں وہ چمگادڑیں بول رہی تھیں کہ وہ چمگادڑیں ہی چمگادڑیں جمع ہو گئیں۔ اور جیسے ہی میری اس پہ نگاہ پڑی، پہلے اس کے پاؤں الٹے اور چمگادڑوں کی طرف نگاہ پڑی، اور جتنی زیادہ وہ تعداد میں تھیں میں بھی سمجھ گیا معاملہ کچھ اور ہے۔ اب بات بہادری کی نہیں، عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ ہمیں دونوں کو بھاگنا تھا۔ میں بھی بھاگا، اور جیسے ہی میں واپس مڑا بھاگنے کے لیے تو شبیر بھی تیار ہو چکا تھا اٹھ کے، اور ہم دونوں بھاگ چکے۔ ہماری کلہاڑی اور ڈنڈا وہیں پہ رہ گیا اور ہم دونوں دوڑنا شروع ہو گئے۔ دن کی روشنی میں یہ سارے منظر ہم نے دیکھے تھے۔ ہم دوڑتے 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 کافی آگے تک آ گئے کہ میرے پاؤں میں ٹھوکر سی لگی اور میں نیچے زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی میں زمین پہ گرا اسی لمحے میری آنکھوں نے ایک منظر دیکھا۔ ایک سفید سی روشنی دور کہیں سے آ رہی تھی، اور وہ سفید سی روشنی آتے آتے بالکل میرے سامنے ایک انسان کا روپ دھار گئی۔ شبیر شاید ابھی بھی آگے بھاگتا ہوا جا رہا تھا، اس کو نہیں پتا تھا میں پیچھے گر چکا ہوں، اور ایسی جگہ پہ میں گرا ہوا تھا جہاں پہ اوپر درختوں کی چھایوں تھی، نیچے سورج کی کرنیں نہیں پہنچ پا رہی تھی، ڈائریکٹ دھوپ نہیں آ رہی تھی، چھاؤں سی تھی، لیکن اندھیرا گھوپ نہیں تھا، دن کا ٹائم تھا۔ اور اسی روشنی کو میں نے تھوڑے ہی فاصلے پہ اس انداز میں دیکھا کہ وہ روشنی ایک انسان کے حلیے میں بدل گئی۔ یہ بالکل وہی روشنی تھی جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا انسان کے حلیے میں بدلتے ہوئے۔ پھر اسی روشنی کو میں نے اپنی قبرستان میں، جب میں گاؤں میں داخل ہو رہا تھا، قبرستان میں صرف دیکھا تھا۔ فرق یہ تھا وہ انسان کے حلیے میں نہیں آئی تھی، اسی طرح ملتی جلتی ایک گول سی لمبی سی روشنی آئی تھی، لیکن قبرستان کے اندر واپس چلی گئی تھی۔ لیکن ابھی میری آنکھوں کے سامنے وہ روشنی آئی، اور بالکل میری آنکھوں کے سامنے ہی ایک انسان کی طرح وہ روشنی بن گئی، اور اسی انسان کو اسی طرح میں نے دیکھا جیسے خواب میں دیکھا تھا۔ لیکن اس وقت جب وہ انسان میرے بالکل کھلی آنکھوں کے سامنے تھا تو میں نے اس کو پہچان لیا۔ وہ چاچا رحمت اللہ تھا، جس کو گاؤں کے لوگ چاچا رحمتے بولتے تھے۔ ہاں، یہ ہمارے گاؤں کا چاچا رحمت اللہ تھا۔ اور اسی وقت اس چاچا رحمت اللہ نے، جس کا ہاتھ ایک روشنی کا بنا ہوا تھا، جس کا پورا وجود ایک روشنی کا بنا تھا، اس نے ہاتھ کے اشارے کی طرف یوں اشارہ کیا انگلی سے، جیسے اسی گھر کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہو۔ اس نے صرف اسی انگلی کی طرف اشارہ کیا، اور اسی وقت اس کا پہلے سر سے غائب ہونا شروع ہوئی وہ روشنی، پہلے سر اور پھر آہستہ آہستہ نیچے غائب ہوتی ہوتی پاؤں تک غائب ہو گئی۔ یعنی اگر کوئی روشنی کا انسان بنا کھڑا ہو سامنے تو اوپر سے وہ غائب ہوتا 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 نیچے تک غائب ہو گیا۔ میں اٹھا، اب شاید شبیر بھی آگے جا کے کافی رک گیا تھا، اس کو میں پیچھے نظر نہیں آیا تھا، اور وہ میرا نام پکار رہا تھا۔ تب میں نے زور سے آواز دے کے کہا، آ رہا ہوں آ رہا ہوں، اور میں اپنی جگہ سے اٹھا اور میں بھی اسی طرف جانا شروع ہو گیا۔ شبیر بولا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، بس گر گیا تھا۔ اب ہم کافی دور آ گئے تھے، اب ہم سانس بھی لے رہے تھے، اب بھاگتے بھاگتے ہم رک سے گئے تھے، اب چلنا شروع ہو گئے تھے، ہمیں سانس چڑھ گئی تھی۔ شبیر بولا، یہ بہت بھیانک تھا، یہ کیا تھا؟ تب میں نے اسے کہا، میں ابھی بھی الجھا ہوا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ بولا، کیا مطلب یار؟ سب کچھ کلیئر تو ہے، وہ کوئی ڈائن ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، ہم غلط جگہ پہ آئے ہیں۔ تو میں نے اسے بتانا شروع کیا، یار پتہ نہیں، میں ایک خواب دیکھتا تھا کہ میں رات کو سوتا تھا تو ایک خواب میں نے مسلسل دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، ایک روشنی سی آتی ہے اور وہ ایک بزرگ کی شکل اختیار کرتی ہے، اور وہ بزرگ ایک سمت میں اشارہ کرتا ہے اور اس کے بعد منظر بدل جاتا ہے، اور میرے والد صاحب مجھے کراہتے ہوئے درد سے چیختے ہوئے نظر آتے ہیں۔
मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे इतला मिली कि वाले साहब को चोट लगी है और मैं गांव आ गया। लेकिन आज इसी जगह को जहां हम भागते हुए दोनों आ रहे थे, तू आगे चला गया था, मुझे चोट लगी है और मैं नीचे गिर गया था। तभी मैंने दोबारा से उस रोशनी को आज ख्वाब में नहीं, खुली आंखों से देखा है। जब मैं गांव में दाखिल हो रहा था तब भी इस रोशनी को देखा था, लेकिन उस रोशनी ने इंसान की शक्ल इख्तियार नहीं की थी। लेकिन अभी जब मुझे ठोकर लगी है, पीछे मैं गिरा हूं, तो उसी रोशनी ने एक इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली है। और उस शक्ल को मैंने क्लियर देखा है, वो अपने गांव के चाचा रहमतुल्लाह की शक्ल थी। और उसी ने उसी तरीके इशारा किया है उस घर की तरफ, और फिर वो गायब हो गया है। ये क्या है? वो दोनों बातें करते हुए चलते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी शबीर बोला, ये एक क्लियर इशारा है तुम्हें, जिसको तुम पहले ख्वाब में देखते रहे, उसकी शक्ल नहीं देख सके, लेकिन अब उसकी शक्ल भी नजर आई है। तो इसका एक ही हल है, हमें चाचा रहमतुल्लाह के पास जाना चाहिए। और वो यूं दोनों चलते चलते अपने गांव पहुंच गए। वो सीधे चाचा रहमते के घर पहुंचे। चाचा रहमता थोड़ी ही देर के बाद उनके सामने बैठा हुआ था। वो चाचा रहमते से बोले, चाचा आपसे एक बात पूछनी है। वो दोनों हैरान इस बात पे थे कि चाचा रहमते को कोई भी ज्यादा नहीं जानता था। 5 वक्त के नमाजी थे। नमाजी तो मोहम्मद शबीर भी था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, लेकिन चाचा रहमते गांव का दुख सुख बांटता था, खामोश तबीयत का इंसान था, 5 वक्त का नमाजी था। सब उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी शक्ल उसको क्यों नजर आई है, वो इस राज से वाकिफ होने के लिए उसके पास पहुंचे थे। और उसके बाद शबीर ने सारी बात उनको बता दी और कहा, एंड में मैंने आपको क्लियर देखा है और ये एक राज है, मेरी आंखों के सामने इसको लाया गया है। मुझे पता है आपके अंदर खुदा ने अगर कोई भी ताकत रखी है आप उसको जरूर छुपाएंगे, लेकिन मैं आपके पास मदद के लिए आया हूं। आप मुझे बताएंगे ये सब कुछ मैंने क्या देखा है। वो कुछ देर खामोश रहे और उसके बाद बोले, कल मेरे पास आना और अकेले आना। उन्होंने कहा ठीक है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने इजाजत दी, घर चले गए। अगले दिन जो टाइम तय हुआ था, उसी वक्त मोहम्मद बशीर चाचा रहमते के पास पहुंच गया। चाचा रहमते जैसे उसका इंतजार कर रहे थे, उससे बोले, हां शायद वो वक्त आ गया है जिसका मुझे भी इंतजार था। मेरे बच्चे, मैं बहुत अरसे से एक अमल करने में मसरूफ था। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसकी कोई ना कोई ड्यूटी लगी होती है। चाचा रहमते इस तरह की बातें अक्सर करते थे जो लोग समझ नहीं सकता था। वो कहते थे बुजुर्ग हैं, बड़ी अकल वाली बातें करते हैं। उस दिन मोहम्मद बशीर कहता है, मुझे समझ आई, वो कह रहे थे कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो कोई ना कोई उसकी ड्यूटी लगी होती है, वो अपनी ड्यूटियों को निभाता है। मैं भी एक अल्लाह का गुनहगार सा बंदा हूं, बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। शायद वो वक्त आ गया है जब अपने अधूरे काम को मैंने मुकम्मल करना है। मैंने कहा, चाचा मैं समझा नहीं। वो बोले, बस तुम्हारे लिए इतना काफी है कि जो कुछ तुमने देखा है वो एक जिन्नात का कबीला है और वो बहुत ताकतवर जिन है। तुमने गलती की वहां पे जाके, क्योंकि तुम दिन की रोशनी में उनको पुकार के ललकार के आए हो। अब तुम जहां भी होगे वो तुम्हें नहीं, पूरे गांव को नुकसान पहुंचाएंगे। जिस बात पे तुम्हारे वालिद ने कहा था कि दुश्मनी बढ़ जाएगी, इसको छोड़ दो, लेकिन मुझे एक इशारे का इंतजार था। जब तक वो मुझे इशारा ना मिलता मैं भी खामोश रहता। मुझे भी वो इशारा मिल चुका है। मैं तो इंतजार में था कि तुम कब मेरे पास आओगे, और कल तुम मेरे पास आखिर आ गए। मेरी तैयारी मुकम्मल है। तुम्हें मेरे साथ वहां पे चलना होगा, लेकिन अपने दिल को बहुत बड़ा करके चलना होगा। तुम्हारी आंखों के सामने जो नज़ारे होंगे ऐसे भयानक होंगे, ऐसे खौफनाक होंगे कि तुम डर जाओगे। लेकिन याद रखना, ये एक जादू की दुनिया होती है, ये जिन्नात की दुनिया होती है। यहाँ पे बहुत कुछ आंखों का धोखा होता है। वहाँ पे जज्बात से नहीं, अकल से काम लेना है। वो तुम्हें बहकाने की कोशिश करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे, हर हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने पाँव पे मजबूत रहना। सिर्फ तुम्हें एक काम करना है, एक पानी को अपने पास हिफाजत में रखना है। एक पानी ये मेरे पास होगा, ये दम किया हुआ पानी है, और एक पानी मेरे पास है।
इस पानी की इब्तिदा तुम करोगे, तुम्हारे हाथ से होगी। तुमने इस पानी को फेंकना है, जो भी तुम्हारे सामने मौजूद हो, मैं तुम्हें बस आवाज़ दूंगा, तुमने जल्दी से इस पानी को उसके ऊपर डाल देना है। बस ये ख्याल रखना, अगर ये पानी चूक गया तो मैं और तुम दोनों मारे जाएंगे, लेकिन अगर इस पानी की एक बूंद, एक कतरा भी उस पर गिर गया तो समझो हम जीत जाएंगे। बाकी आगे क्या होना है मेरा रब बहुत बेहतर जानता है। हम तो सिर्फ एक ड्यूटी देने वाले आम इंसान हैं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैंने कहा, चाचा, जो आपने बातें बताई हैं एक अजीबो गरीब सी दुनिया की बातें हैं, अजीब सी बातें हैं। मैं इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या आपको लगता है मैं इतना इस काबिल हूं कि मैं आपका साथ दे सकूंगा? तो चाचा बोले, जो ख्वाबों में इशारा दिया गया और उसके बाद ठोकर लगी और दिखाया गया, तो उसका मतलब यही है, इसके लिए तुम्हें चुना गया था। तुम एक नेक इंसान हो, परहेजी इंसान हो, अल्लाह का खौफ रखने वाले इंसान हो, लोगों की मदद करने वाले इंसान हो। एक जज्बा है तुम्हारे अंदर, शायद इसके लिए तुम्हें चुना गया है। बाकी बस ज्यादा जानने की कोशिश मत करना, ये एक और दुनिया होती है। यूं चाचा ने मेरे साथ प्रोग्राम बना लिया कि अब हम कल इस टाइम वहां पे रवाना होंगे, और जैसे ही सूरज गरूब होगा वो सब आबाद हो जाते हैं, वो सब जाग जाते हैं। लेकिन दिन की रोशनी में वो सब कोशिश करते हैं वो सोए रहें, वो बाहर ना निकलें, मजबूरी के तहत बाहर निकलते हैं। तुमने जो कुछ मुझे बताया है, वो जो बुढ़िया सी बन के आई थी, वो भी सूरज की रोशनी से बचने की बार बार कोशिश कर रही थी। वो जो चमगादड़ें आ गई थी, वो गुस्से का इजहार था, अगर तुम वहां रखते तो वाकई तुम्हें मार दिया जाता, लेकिन शायद तुम्हें चुना गया था इसलिए तुम जिंदा बच के आ गए, वरना वहां से कोई जिंदा बच के नहीं आता। जब तुम्हारे वालिद वहां पे गए थे तो उस वक्त वो एक अपने ऐसे अमल में मसरूफ थे जिसमें वो किसी को अभी मार नहीं सकते थे, अब वो मार सकते हैं। उनका अमल मुकम्मल हो चुका है और वो इस तरह के अमल करते रहते हैं। तुम्हारे वालिद वैसे ही रात को वालिद और उनके दोस्त रहने के लिए चले गए, और उस रात वो एक अमल कर रहे थे, ऐसा अमल जिसमें तुम्हारे वालिद ने खलल डाला। उनको इंसान को उस लम्हे मारने की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गुस्से में तुम्हारे वालिद को धक्का दिया, जिससे उनका बाजू टूटा। बाकी खुदा खैर करेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। चाचा रहमते और वो दोनों रवाना हुए, मोहम्मद बशीर रवाना हुए। बशीर ने पानी को इस अंदाज में पकड़ा हुआ था जैसे कोई फौजी अपना हथियार अपने सीने से लगा कर रखता है, और चाचा ने उसको पढ़ने के लिए एक तस्बीह बता दी थी, उसके ऊपर दायरा कड़ा कर दिया था, खुद भी अपना दायरा कड़ा किया था, और उन्होंने कहा, ये तस्बीह तुमने मुसलसल पढ़ते रहना है, चाहे कुछ भी देखो तुमने डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए खौफजदा नहीं होना। हमें उस लम्हे पहुंचना है जब सूरज गरूब हो रहा हो। अगर मुकम्मल रात हो गई तो हम मारे जाएंगे। दिन को हम नहीं पहुंच सकते, ना उनको कुछ कर सकते हैं, ना उनको सामने ला सकते हैं। जैसे सूरज गरूब होने वाला होगा, बस वही लम्हा होगा जब हमने सारी कार्रवाई करनी है। वो दोनों रवाना हुए ऐसे टाइम पे कि बहुत जल्दी पहुंच गए। अभी दिन की रोशनी बहुत तेज थी कि चाचा रहमते बोले, अभी हमें रुकना होगा, जैसे ही सूरज ढलने लगेगा तो हम फौरी अंदर दाखिल होंगे। और जैसे ही सूरज ढलने वाला हुआ, वो दोनों चलते हुए उस घर के पास पहुंचे। चाचा रहमते बोले, तुम अभी बाहर ही रुकोगे, मैं एक अंदर का चक्कर लगाकर वापस आता हूं, लेकिन डरना मत। चाचा रहमते जो थे तो बुजुर्ग, सफेद गोरा चिट्टा सा उनका रंग था, अल्लाह ने उनको अलग ही बनाया था, कमाल किस्म के बुजुर्ग थे। सब गांव वाले उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। आज भी हमें याद है कि क्या ग्रेट इंसान थे। वो अंदर की तरफ चले गए और मैं वहीं पे खड़ा था कि मैंने देखा एक ऐसा पहलवान जिसका नक्शा मेरे बाप ने खींचा था, जिसने लंगोट पहन रखा था, जिसका 6 फुट कद था, बहुत तगड़ा, बॉडी बिल्डरों की तरह उसका वजूद था। वो तो बॉडी बिल्डर आज का लफ्ज़ है, उन्होंने इस्तेमाल किया कसरती जिस्म, यानी जो वर्जिश करते थे पहलवान, वैसा जिस्म। और जब वो चलता हुआ आ रहा था तो उसके हैरत की बात ये थी, एक हाथ उसने बालों से पकड़ रखा था मेरे बाप को, और दूसरे हाथ से उसने मेरे
कजन को पकड़ रखा था। और मैं बेइंतहा हैरान हो गया। वो दूर खड़ा था कि उसी लम्हे मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मेरे बाप और मेरे कजन को देख के कि उसके बालों से पकड़ के वो शैतान सामने खड़ा है, वो वाकई एक जिन ही लगता था। वो बहुत ताकतवर पहलवान सा लग रहा था कि उसी लम्हे 3-4 काले स्याह, जैसे मेरे बाप ने बताया था, उन्होंने उस बाबा रहमते को पकड़ रखा था। और वो चलते हुए उस पहलवान से भी आगे मेरी तरफ आने शुरू हो गए। और चाचा रहमते मुझसे बोले, बेटा इन्होंने मुझे पकड़ लिया। इनका जादू, इनका इल्म मुझसे भी कहीं ज्यादा है। ये बहुत ताकतवर हैं, मुझे माफ कर देना। मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मैं कुछ भी नहीं बचा सका, मुझे माफ कर देना। वो दोनों बोले, अब जो तेरे हाथ में पकड़ी हुई पानी की बोतल है, इसको फेंक दे, फौरी तौर पे फेंक दे। उस दौर में प्लास्टिक की, आज बड़ी बड़ी ये पेप्सी कोक इस तरह की बोतलें आती हैं, उस वक्त शीशे की बोतल्स आती थी, कांच की। और उस काले ने कहका लगाते हुए कहा, ये देख, ये हमारे हाथ में है। वो जो बोतल चाचा रहमते के पास थी, उसी काले स्याह हबशी की तरह का जो था, उसके हाथ में थी। उसने हंसते हुए उठा के जोर से दूर फेंकी और वो नीचे गिरी और टूट गई। और चाचा रहमते बोले, ना, इसको ना फेंकना, इसको ना फेंकना, क्योंकि उसको याद था इसी पानी को ही फेंकने के लिए कहा गया था। और वो दो जो चाचा रहमते के, 2 लेफ्ट पे 2 राइट पे खड़े थे, उन्होंने कहा, अगर तूने हमारी बात ना मानी तो देख, ये भी मरेगा और पीछे वो भी मरेंगे। अब वो परेशान हो गया कि क्या करूं, कि उसी वक्त उसने देखा वो पीछे खड़ा हुआ जो पहलवान था जोर से धाड़ा। फिर देख इनका अंजाम। उसी वक्त कहां से 8-10 काले स्याह आ गए कि वो एकदम से हैरान हो गया। ऐसे लगता था जैसे वो पूरी जगह काले स्याह, वैसे जो 4 उसके सामने खड़े थे चाचा रहमते को पकड़ के, वैसे भरते जा रहे थे, कहां से निकलते आ रहे थे इतने ज्यादा। वो हैरान हो गया। वो शदीद काले स्याह थे, सिर्फ उनकी आंखें वाइट थी या दांत वाइट थे और काले स्याह थे। उन्होंने आते ही कुछ कालों ने उसके बाप को और कुछ कालों ने उसके दोस्त शबीर को पकड़ लिया। और उस पहलवान ने कहा, फेंक दे इसको। वो सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं, कि उसी लम्हे वो जो 4 जिन्होंने चाचा रहमते को पकड़ा हुआ था, उन्होंने एक खंजर निकाला और चाचा रहमते के पेट में गाड़ दिया। जैसे ही खंजर बाहर निकाला, एक खून का फुआरा सा निकला और उनके पेट से खून निकलना शुरू हो गया। बोले, फेंक इसको। और वो फिर परेशान हो गया कि अब तो सारा कुछ उलट हो गया था, चाचा रहमते ही पकड़े गए थे, उन्होंने ही तो बचाना था। कि उसी लम्हे फिर से उन्होंने एक और जोरदार खंजर उस चाचा रहमते के पेट में डाला और कहा, फेंक इसको। चाचा रहमते बोले, बेटा इसको ना फेंकना। और उसी लम्हे पीछे खड़े हुए पहलवान ने, जो उनके बाप और उसके कजन को पकड़ा हुआ था, उसने छुरी उठाई और उसके कजन की गर्दन उड़ा दी। इस अंदाज में छुरी टाइप सी थी कि उसकी गर्दन कट के नीचे जा गिरी और उसका वजूद, जिसके अंदर से फुआरा खून का उबल बड़ा था, वो जमीन पे गिर गया। उसने कहा, फेंक, और उसका इशारा अब उसके बाप की तरफ था। और उसी वक्त उसने दूसरी दफा कहा, अब अगर तूने मेरी बात ना मानी तो देख, फिर इसी का अंजाम भी तेरे इसी कजन की तरह होगा। उसने फिर खामोशी इख्तियार की। अभी तक उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, इतनी जल्दी उसके सामने आ गया था सब कुछ। बाप और चाचा पकड़े हुए थे, कजन और बाप पकड़े हुए थे सामने। कजन की गर्दन कट चुकी थी, चाचा रहमते को खंजर मार चुके थे। कि उसी वक्त वो कहता है, दोनों, मेरा बाप की भी गर्दन उड़ा दी गई। और मेरे बाप की गर्दन उसके हाथ में थी, उसने उसको बालों से पकड़ा हुआ था और उसका वजूद, जिसके अंदर से खून उबल रहा था, टूटे हुए बाजू के साथ, बंधे हुए बाजू के साथ, मेरा बाप मुंह के बल जमीन पे जा गिरा। और मेरे वजूद से जान निकल गई। जो भी मेरे अंदर बहादुरी थी वो सब खत्म हो गई। मेरा वजूद थर थर कांपना शुरू हो गया। अब तो बचा ही कुछ नहीं था। कि उसी लम्हे
वो तेजी से चलता हुआ वो पहलवान टाइप आगे आया और उसने बालों से पकड़ा चाचा रहमते के और उसकी गर्दन पे इस अंदाज में रख दिया कि अब वो उसकी गर्दन काटने वाला था, और बोला मैं सिर्फ एक दफा बोलूंगा, फेंक दे इसको। और जैसे ही उसने उसकी गर्दन पे चाकू रखा, वो समझ गया कि इसी ने ही तो सब खत्म करना था। अगर इसकी भी गर्दन काट ली, इतनी जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। कि उसी वक्त उसने बोतल उठाई और जैसे ही फेंकने के लिए हाथ ऐसे किया, एक जोरदार आवाज उसके कानों में आई, नहीं बशीर, इसको मत फेंकना। और एकदम से चौंका और उसने पूछे मुड़ के देखा, चाचा रहमत चलता हुआ आ रहा था। और उसी वक्त वो जो उसके हाथ में चाचा रहमते की छुरी रख के खड़ा था उसकी गर्दन पे, उसने भी मुड़ के देखा तो चाचा रहमते को धक्का दे के नीचे गिरा दिया। उसी वक्त वो एक हड्डियों का ढांचा बन गया और हड्डियों का ढांचा नीचे गिर पड़ा। चाचा रहमते चलता हुआ मुस्कुराता हुआ आगे आ रहा था और उसने पीछे से आवाज लगा दी थी कि इसको मत फेंकना। तभी उसने फौरी कहा, इनके ऊपर फौरी फेंक दे। अब वो चाचा रहमते को जब मारने के लिए आया था तो बिल्कुल उनके करीब आके खड़ा था। उसके करीब पहले वो 4 काले से स्याह से खड़े हुए थे, जिन्होंने 2 ने चाचा रहमते को लेफ्ट साइड से और 2 ने राइट साइड से पकड़ा हुआ था। और उनके बाप मोहम्मद बशीर के बाप और कज़न शबीर की गर्दनें काटने के बाद वही पहलवान चलता हुआ उसी जगह पे आके खड़ा हो गया था। अब उसकी पानी की रेंज में था, अगर वो पानी फेंकता तो पानी सीधा उसके ऊपर जाता, और पीछे से इशारा मिल चुका था कि फौरी फेंक। और उसी लम्हे उसने बॉटल का जल्दी से ढक्कन खोला और वो अलर्ट हो गया था सामने वाला खड़ा पहलवान को। उसने देखा ये बोतल फेंक रहा है। उसी लम्हे उसने अपना हाथ तेजी से आगे किया उसकी हाथ से बोतल छीनने के लिए, लेकिन वो भी एक फौजी था और जानता था कितनी तेजी चाहिए होती है। उसने इतनी देर में बोतल का ढक्कन खोल लिया था और उसका हाथ बिल्कुल उसके पास पहुंच गया था। और जैसे ही उसका हाथ पहुंचा, इतनी देर में बोतल का पानी उसके हाथ को टच हो गया। जैसे ही वो पानी उसके हाथ को टच हुआ, वहीं से एक आग का शोला निकला और तेजी के साथ वो आग उसके बाजू की तरफ गई और वो चीखता हुआ पीछे की तरफ भागा। और चाचा ने कहा बाकियों पे भी फेंक, और चाचा ने वही मोहम्मद बशीर ने जो पानी था जल्दी से बाकियों पे भी ऐसे जोर से फेंका। पानी जहां जहां पे गया एक आग सी लग गई। और उसके बाद चाचा कुछ पढ़ते जा रहे थे, चाचा रहमते, और पानी के छींटे फेंकते जा रहे थे। वहां पे जो काले स्याह लोगों का रश पड़ चुका था, वो आंखों के सामने ही, बशीर कहते हैं मेरी आंखों के सामने सारे ऊपर की तरफ उड़े और चिमगादड़ें बनना शुरू हो गए। और उन चिमगादड़ों को आग लग रही थी बाकायदा। वो चिमगादड़ें जिनके परों में आग लगी हुई थी वो उड़ रही थी और एक पटाखे की आवाज आती, पटाख, और वो फट सी जाती चिमगादड़। लेकिन वो जो हबशी थे वो तो चिमगादड़ें बन के उड़ रहे थे, उनको आग लगी हुई थी। वो जो पहलवान टाइप सा था, उसी वक्त उसके जिस्म को आग लग गई और उसके बाजू से आग दूसरे बाजू पे भी लग गई। उसके बाजू कट कर नीचे गिर गए। और उसी वक्त मोहम्मद बशीर कहता है मैंने देखा उसका कद लंबा होना शुरू हो गया। वो उन्हीं लोगों की तरह काला स्याह होना शुरू हो गया जैसे वो काला स्याह थे, लेकिन उसका वजूद ऐसे धुएं की तरह काला स्याह हो गया जिसके मैं आर पार भी देख सकता था। और उसका वजूद लंबा होता गया, लंबा होता गया, लंबा होता, ऐसे आसमान की तरफ लंबा होता जा रहा था। मेरे अवसान खता थे, मेरा वजूद कांप रहा था, मेरे दिल की धड़कन तेज थी कि चिमगादड़ें फट रही थी। इतनी ज्यादा एक शोर था और हर जगह पे आग ही आग लग रही थी। और उसका कद जैसे जैसे ऊंचा होता जा रहा था और मैं उसको देखता जा रहा था, बस मैं पानी फेंक रहा था। और चाचा रहमते थे जो होशो हवास में थे कि मैं वहीं पे गिर गया और इतना खौफनाक भयानक मंजर देख के मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो चाचा रहमते मेरे साथ बैठे हुए थे और मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे पानी पिला रहे थे। मैं होश में आ गया, मैंने आंखें खोली तो मैं उठ के बैठ गया। मुझे कहते हैं सब ठीक हो गया, घबराओ मत, सब खत्म हो गया। मैंने उठ के देखा, अब रात हो चुकी थी, लेकिन हर तरफ वो कमरे जो लकड़ी के बने हुए थे वो टूटे फूटे कमरे थे। ऐसे लगता था जैसे कई सालों से वो टूटे फूटे हों। तो मैंने कहा चाचा ये क्या हुआ? तो बोले वो सब धोखा था, वो उनका जादू था। जब मैं अंदर गया था तो मैं अपना अमल मुकम्मल करके ही गया था और पानी हाथ में ही लेके गया था। सब जानता था, इसलिए तुम्हें अलर्ट करके गया था कि इनसे बचना, तुम्हें डराएंगे, धोखा देंगे, और शुक्र है तुम बहादुरी से डरे नहीं, डटे रहे। ये सब उनका जादू था। ये एक जिनात का बहुत बड़ा कबीला था।
जो एक अमल करने में लगा हुआ था, अगर ये इनका अमल मुकम्मल हो जाता तो बहुत बहुत ज़्यादा ये खौफनाक हो जाते और इंसानों को नुकसान पहुंचाते या खुदा जाने क्या करते। लेकिन खुदा ड्यूटियां लगा देता है। तुम्हें इशारे मिले और मैं पहले से ही इंतज़ार में था कि मुझे इशारे मिल चुके थे कि काम है, मैंने मुकम्मल करना है। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता। यूं समझो मेरी भी ड्यूटी थी, मैंने इसको मुकम्मल करना था। और जब मैं अंदर गया तो कुछ ऐसा था जो मैंने मुकम्मल करना था, जो मैंने जाके अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर लिया। और वो जानते थे कि मुझे तो वो तोड़ नहीं सकते, मैं मजबूत हूँ, अमलियात का मालिक हूँ, रूहानियत जानता हूँ और एक अमल करके आया हूँ। तुम उनके लिए एक आसान हदफ थे, जो जानते थे तुम्हें आसानी से तोड़ सकते हैं। और अगर तुम अपने हाथ में पकड़ी हुई ये बोतल तोड़ देते तो फिर शायद मैं भी ना बच सकता। लेकिन वही कहा ना, होना क्या है खुदा बेहतर जानता है। खुदा ही बेहतर जानता था आगे क्या होना है। मैंने जाके अपना काम पूरा किया और जब अपना काम पूरा करके वापस आया तो मैंने देखा कि एक ऐसा खौफनाक मंजर था कि तुम्हें वो डराने में लगे हुए थे, गर्दनों को काट रहे थे और तुम उसी वक्त बोतल शायद फेंकने वाले थे कि मैंने आवाज़ दी कि इनको मत फेंकना। और तुमने जैसे ही मुझे देखा तुम होश में आ गए, हिम्मत में आ गए। और उसके बाद जो कुछ था वो तुमने अपनी आंखों से देख लिया और उसके बाद तुम फिर बेहोश हो गए, क्योंकि उसके बाद भी बहुत कुछ भयानक हुआ था। लेकिन तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है, जितना मंजर तुमने देखा है ये काफ़ी था। उठो मेरे बच्चे, हमें वापस जाना है। यूं चाचा रहमते और मैं हम चलते हुए रात को जंगल से गुजरते हुए, अब मेरे अंदर कोई खौफ नहीं था, जो कुछ मैं देख चुका था। हम वापस आ गए। चाचा रहमते ने मुझे एक बात की थी कि मेरी जिंदगी में इस बात का किसी से जिक्र मत करना और कोशिश करना कभी भी इस बात को मत ही किसी को बताना। राज होते हैं खुदा के राज, उनको राज ही रहने देना। और मैंने उसको राज ही रहने दिया। मैं अपनी जॉब करता रहा। मुलाजमत के एक टाइम होता है, आप रिटायर हो जाते हैं। मैं रिटायर हो गया, गांव में आई एक किराने की दुकान खोल ली। काफ़ी अरसे से दुकान चला रहा हूँ। वहीं पे कहानियों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि फिर दिल में एक ऐसी बात उठी, चाचा रहमते तो कब के फौत हो चुके, अल्लाह को प्यारे हो चुके। मैंने भी कभी ये बात कभी किसी को भी नहीं बताई, लेकिन मेरे दिल में आई कि आज इस राज को ज़रूर शेयर करूं। आप बेहतर जानते हैं, आपकी बातों से, आपकी रूहानियत की वीडियोज़ को देख के, मैं ऐसे आमलों पर आमिल बने हुए हैं, पीर फ़कीर, मैं इनको नहीं मानता। लेकिन उनकी आपकी मोहब्बत, आमिर साहब, बशीर साहब, कि मैं आपकी बातों को सुनता हूँ, मानता हूँ। खुदा ने जो आपको इल्म दिया है, आप इन राज़ों से वाकिफ़ हैं। बहुत सारे राज आप भी जानते हैं। तो इसलिए यह मैं कहानी आपके हवाले कर रहा हूँ और चंद नीचे सवालात भी भेज रहा हूँ जो आज मुझे भी उलझन में डाल देते हैं। आज उन सवालात का जवाब मैं सोचता हूँ तो मेरे पास जवाब नहीं है। यकीनन आप मुझे उसका जवाब ज़रूर देंगे। और जितना हिस्सा आप कहानी में सुनाना चाहें सुना दीजिएगा, बाकी जो पोशीदा रखने वाली इसमें बातें हैं पोशीदा रख दीजिएगा। तो मैंने भी ऐसे ही किया है। इस कहानी में जितना सुनाने वाला था वही सुनाया है और बाकी मैंने पोशीदा रखा। और जो आपके सवालों के जवाब हैं वो यहाँ लाइव नहीं, कहानी में नहीं दिए जा सकते, वो बहुत राजों में से राज हैं। तो आपको, क्योंकि आपने मुझे कहानी भेजी भी इस शर्त पे है कि अगर आप मेरे इन सवालों का जवाब दे सकें तो ज़रूर आप इसको प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है और मैं चाहता था इसको प्रोग्राम में शामिल करूं, तो इसलिए मैं अलग से आपको सवालों के जवाब भी देने जा रहा हूं और इस कहानी को लोगों के साथ शेयर करने भी जा रहा हूं।